in your own language. What is statistics basically? Deepa, what do you understand the term statistics? Hello. Hello. Deepa, are you getting me? Yeah. I just muted so that it will not be a disturbances. Okay. Okay. So I would like to know what do you think? What is statistics? Statistics is just a data analyzing data on certain mathematical calculations. I don't know whether I'm sure because Yeah. mode, median, all those things comes under statistics. Yeah. Nice. And Vansika? So basically like collection of data and then analyzing the data Yeah. on the average, mean, median, mode, Yeah. standard deviation, all. Nice. And Achal? Yes, so statistics is basically a method through which you can understand the raw data and uh, you can explore or you can visualize that data in various graphical formats, and you Hmm. can test the raw data Hmm. with the help of various statistical methods, tools, and techniques. You can understand them and you can understand the trend where the data is going and how you can manipulate that data, how you can figure out and how you can interpret something best from that data. Hmm. Very nice. So what you have told, everybody was right. Achal explained very well so many things which has been used in statistics. Yes. Now I give the general definition of statistics because the data analytics is a part of statistics. Yes. You see, statistics आज से नहीं, आदिकाल से सबसे पहले मैथ्स के पहले, लैंग्वेज के पहले स्टेटिस्टिक्स लोगों ने सीखा था, आदि मानव ने, जो हमारे पूर्वज थे जब वो कुंदराओं में गुफाओं में रहा करते थे. आर यू गेटिंग दीपा दिस? Yeah. I can है ना? understand. Yeah. आई विल वेल एक्सप्लेन दिस थिंग इन हिंदी and rather than English. Okay, it is a story like. So उस टाइम हमारे जो पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे, तो एक बड़ा कुनबा होता था, ज्यादा लोग होते थे एक परिवार में गुफा में, है ना? 20-25 लोग एक गुफा में रहा करते थे, बड़े परिवार होते थे. तो उन परिवार के सदस्यों की संख्या उन्हें याद रखना पड़ती थी, कितने लोग हैं, और उसके लिए वो लोग क्या करते थे, गुफाओं में टेली मार्किंग करते थे, लाइन खींच देते थे, जैसे अपने टेली मार्क होता है ना, जस्ट लाइक दैट. अपन 5 पे क्रॉस करते, वो लोग क्रॉस नहीं करते थे, वो कंपेयर करते थे. दे डोंट नो 1 2 3 4 5 6, उनको गिनती नहीं आता था, बट दे कंपेयर, एक लाइन इसकी, 2 3 ऐसे कंपेयर करते थे. उस कंपैरिजन से यदि शाम को उनको एक भी सदस्य कम दिखता था तो वो मसाल लेके उसको ढूंढने निकल जाते थे जंगलों में. वहां से स्टैटिस्टिक्स चालू हुआ, जबकि लैंग्वेज भी नहीं थी और मैथ्स तो थी नहीं उस टाइम, 1 2 3 4 5, पर स्टैटिस्टिक्स थी. और जब ये लोग थोड़े से पशुओं को पालने लगे, बेड़े में भेड़ बकरी वगैरह गाय, ये पालना जब इन्होंने चालू किया, मवेशियों को, तो उन्होंने वहां चट्टानों पे इनके चित्र उकेरना चालू कर दिए कि भाई ये इतने हैं, ये इतने हैं, टेली मार्किंग के लिए. तो वहां से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुई. तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जहां भी डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स है. अब डेटा किसको बोलेंगे? जो भी चीज 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 इज कॉल्ड डेटा, है ना? कोई भी चीज यदि 1 है तो डेट इज नॉट ए डेटा. जैसे ईश्वर, गॉड, है ना, वो एक ही है, वो डेटा नहीं है. उसके अलावा जो भी है सब डेटा हो गया, है ना. एक से जहां 2 हुए वो डेटा में कन्वर्सन हो गया. सो दैट इज डेटा. और जहां डेटा है वहां स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का, सिंपल, कि स्टैटिस्टिक्स है क्या. ओके. Statistics is science and art of
collecting, classifying, computing, analyzing, interpreting, and presentation of data and its insights. This is the definition of statistics. Statistics is a science. It's a science and arts both. Why it is science? Because if we have a data we have some data like 23, 24, 25, 30, 32. Now we have to find the mean of this data, or we have the formula mean is equal to summation of x upon n. This is the x we have. So we get the summation of this and we find out divide by the total number of elements, total number of data site. Right. So we all get the same answer if we want to make any calculation mistake. Yes. So that is science, because we are getting the same answer. It is the universal answer it will give us. Okay. It doesn't mean that I have a more experienced person, so my mean is better than your mean. Right. No. Okay. So it is a science. Just like the acid or base, जब भी हम mixture बनाते हैं, तो it will give us the salt and water. तो like एक fixed चीज मिलेगी, इसलिए वो science है. तो यहाँ पर भी methods हैं, formulas हैं जो हम use करते हैं, वो कोई भी use करे, कोई भी एज का व्यक्ति, कोई भी जेंडर डिस्क्रिप्शन हो, रिलीजियस, कोई भी कुछ भी चीज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज वही आएगी, चाहे वो एज फैक्टर कुछ भी हो. पर ये आर्ट भी है. आर्ट इसलिए है कि हमें इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है ना. अब इंटरप्रिटेशन के लिए यदि हम एक चीज देखें, this is a glass of water. How do you interpret it? So the glass is half full. Of water. Yeah. The glass is half full of water. Half full of water. Other interpretation? The glass is half empty. Yeah. Correct. Correct. Some other interpretation? Deepa, can you interpret it some other way? The glass is having some liquid. You have to add half more glass to fill the glass. Vansika? For all the interpretations are, I think, already told. Okay, okay. So there is a three ways of interpretation. One is half empty, one is half filled. Okay. There is some hidden thing always in result. When we get the results in statistics, there is something hidden behind the result, behind the values that we have to catch. If you are able to catch those things out of the result, then you would be a good data analyst. Okay. So here's something hidden in this interpretation. This glass is full, half with water and half with air. Is it correct? Half with water and half with air. Half with air. Air. Right. Okay. Correct. Right. So what would the correct interpretation? Half with water and half with air. Right. This okay. Is, So that is the thing. Interpretation requires some experience. Okay. Okay. Some experience. Experience. Okay. If you have so it is called an art. क्योंकि कोई भी आर्ट जो है उसको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. ये रिक्वायर द प्रैक्टिस. ओके. Right.
इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए मान लीजिए यदि एक हस्बैंड वाइफ कहीं ज्योतिष के पास गए दिखाने के लिए कुंडली, और उसने देखा कि हस्बैंड की आयु जो है वो कम है, यदि वो सीधे से उसको इंटरप्रेट कर देता है, फलादेश दे देता है कि आपके हस्बैंड तो जल्दी चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो दोनों ही जूते मारेंगे उसको, पति Right. पत्नी। और यदि वो ये बोलता है कि भाभी जी आप बड़ी स्वस्थ रहेंगी लंबे समय तक, अच्छा जिएंगी, तो ये इंटरप्रिटेशन से वो दोनों खुश हो जाएंगे, है ना। उसने ये नहीं बोला कि आपके हस्बैंड जल्दी मार जाएंगे क्या। तो interpretation is very important thing, is require some sort of experience and the practice, so it is an art, क्योंकि interpretation is very important। सबसे मेन चीज होती है वो रिजल्ट के बाद हम उसका एनालिसिस करने के बाद, रिजल्ट ऑलवेज वी गेट in statistics in the form of numeric form, okay, the numeric value we get, and then we have to interpret it in the word after analyzing, okay. So first we collect the data, there may be any source, है ना। Classifying the data, we study the classifications of data. There are three main classifications of data according to structure, according to nature, and according to function. So we study all classifications of the data. So first we get the data, collect the data, then we classify it. Then we compute. So what we compute? Compute the statistics. So what is statistics basically? Measure of central tendency, mean, mode, median. Measure of dispersion, standard deviation, mean, absolute deviation, variance. These all are called statistics. Okay. तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, देन वी एनालाइज इट, उसको हम एनालाइज करते हैं, देन वी इंटरप्रेट इन वर्ड्स। इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज इन वर्ड्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स इनसाइट। जो भी हमें उससे आउटपुट मिला है उसको प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंट करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, हम ग्राफ्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। वी हैव मेनी वेज टू प्रेजेंट द डेटा। सो एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन डेटा, ओके। So this is the basic definition of statistics. Now we see what is data analysis. Okay. Yes. So we see next. Sorry. इट इज अ प्रोसेस। वो साइंस और आर्ट है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस काय के लिए? ऑफ इंस्पेक्टिंग, देन क्लीनिंग, हम क्लींजिंग लिख सकते हैं इसको, क्लेंजिंग और क्लीनिंग। क्लींजिंग क्लीन करना उसको, है ना, क्लींजिंग। एंड ट्रांसफॉर्मिंग, and modeling. Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information informing conclusions and supporting decision making and supporting decision making. As you noted, you want to do the data analytics after BA, Vansiga, BBA. BBA. Yes, BBA. sir. So in the management or whatever in the field of science or in every field, why we do the analysis? For decision making. Yes, sir. And the main purpose is we have to take the proper decision.
Okay, so data analysis is a process. It is a process of inspecting. पहले डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उसको इंस्पेक्ट करना है ना, कि उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या गैंग्स हैं, मतलब क्या उसके अंदर कचरा है, एक प्रकार से अपन देखें, है ना, और उसकी क्लींजिंग करना, जो भी चीज उसमें डिफिशियंसीज हैं उनको दूर करना। देन ट्रांसफॉर्म करना कि डेटा को हमें किस प्रकार से करना है, रो कॉलम कैसे बनाना है हमें, है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रॉपर तरीके से उसको एक उसमें रखना। एंड मॉडलिंग डेटा। अब मॉडलिंग की जहां बात आती है डेटा एनालिसिस में, मॉडलिंग का मतलब होता है कि देखिए तीन अभी अपन देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एनालिसिस में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो मॉडलिंग जो होता है वो दैट इज द प्रेडिक्टिव एनालिसिस, है ना। तो मॉडलिंग डेटा विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, है ना, इस उद्देश्य से हम इसको करते हैं कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल पाए, उसमें से डिस्कवर कर पाए, है ना। मॉडलिंग बेसिकली वो होता है कि जैसे कि अलग अलग जो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगाते हैं। नहीं, मॉडलिंग में बताता हूँ, इसे अपन एक चीज देखें, हमें एक मॉडल बनाना है, मान लीजिए कि कोविड-19 को ही लें, है ना। कोविड-19 में हम जानना चाहते हैं कि कल कितने लोग इससे संक्रमित होंगे, इससे मतलब इफेक्टेड होंगे, है ना, कितने लोगों को ये होगा नेक्स्ट डे का। यदि हमने पिछले डेटा को लेकर के, जब से ये चालू हुआ है 30 दिसंबर से, और इस पे एक मॉडल बना लिया, टाइम सीरीज मॉडल बनता है इसके ऊपर, है ना, अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग तरह के मॉडल बनते हैं। तो टाइम सीरीज क्योंकि टाइम पे बेस्ड है, भाई पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, देयर इज अ टाइम इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने उससे एक मॉडल बना ली जो हमें बता रहा है कि कल हमारा 600 कुछ का फिगर आएगा। तो दैट इज द मॉडल कि हमने नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर दिया आगे के 3 दिन का, 4 दिन का टाइम सीरीज में। ऐसे ही हमें रेन फोरकास्ट करना है, मान लीजिए कि भाई इतने मिलीमीटर बारिश होगी तो अब रेन कितना, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन जनरली डिपेंड्स ऑन रेन, किसी भी उसका। तो यदि हमारे पिछले 50 साल, 30 साल, 40 साल का डेटा, उससे हम मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल कहलाता है रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन एनालिसिस वाला। तो अलग अलग डेटा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट डेटा के हिसाब से डिफरेंट प्रकार की मॉडलिंग होती है ना। उस मॉडलिंग से हम प्रेडिक्शन या फ्यूचर प्रेडिक्शन फाइंड आउट करते हैं कि ये होगा, यदि ये इनपुट होंगे तो ये आउटपुट होगा। तो ये कैसे पता चलता है किस डेटा के लिए कौन सा मॉडल लगना है? हाँ, वही चीज तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आगे। अच्छा, ठीक है ना, वही सब चीजें हमें देखना है। बहुत इजी है, दैट्स नॉट अ बिग टास्क। वो डेटा को देख के फिर समझ में आने लगता है, हाँ इसका ऐसा होगा, है ना। तो इन्फॉर्मिंग कंक्लूजन्स एंड सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, जब हमें ये सब मिल जाता है तो हम फिर डिसीजन मेकिंग में हमें ये चीज सपोर्ट करती है। जो भी कंक्लूजन्स हमारे पास आते हैं उससे हम डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी अपन देखेंगे ना, कोविड पे भी आप देखेंगे पूरा स्टेटिस्टिक्स पे ही वर्क हो रहा है। तो उन्होंने इटली में देखा कि भाई उन्होंने देर से लॉकडाउन किया, अपन ने पहले ही कर दिया लॉकडाउन, तो अपने अभी थर्ड स्टेज पहुंच ही नहीं पा रहा है वो, है ना। नहीं तो आज हमें हमारे काफी, हमारे इतने ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि हमारे बहुत तेजी से फैलता है ना। तो ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पर थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच पाया है अर्ली लॉकडाउन से। So decision, sorry, data analysis. Now you got the definition of data analysis, or I explain more about it? Yes. Okay. So it is the process, or statistics is the science and art. Okay. This is the main difference. Now we see the data science. Okay. The third terminology is data science. So I explain here. Is an umbrella. इसमें सब आ जाता है। Is a umbrella term. Okay. That encompasses data analytics, data mining, machine learning,
and several other related disciplines. तो और भी जो डिसिप्लिन है, डेटा साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म, इसमें सभी इंक्लूड हो जाता है, डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, और भी जो चीजें हैं इसके अंदर काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. सो दैट इज द डेटा साइंस. ओके, इसी में डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स तो सब जगह है. तो आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट इज द फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स? Mr. Parmar, sorry Yeah. to interrupt you. Yeah. Do we really need to record these introductory sessions? Can you ask all the participants that we really need to record this session, or we can start it off this recordings from tomorrow? नहीं, we record today, from today. From today itself? ठीक. हाँ. ठीक. Okay. The statistic is basically a science. हाँ, science and art both. Science and an art both, Hmm. which is basically used to accumulate the information, gather it, then classifying it, and then analyzing it, and after that interpreting it Yeah. to make the data in a presentable form, getting out some useful information from it. Yeah. So that is statistics. Yeah. Now we see what is first statistics. I am asking about first statistics. First statistics. First statistics. If you have some data, Yes. उसमें आप कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, है ना? तो आप क्या फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स आप क्या निकालते हैं किसी भी चीज में? So उसका मीन तो बहुत आगे की बात हो गई, उसके पहले कुछ निकाल सकते हैं आप, मीन से भी पहले. मीन से भी पहले. What is it about? Number What is of it about? What? हाँ, दीपा आप बोल रहे हैं? Yeah. What is it about? Why are we doing it? Okay. पहले हमें हाँ, तो देखिएगा, आपके पास कुछ भी निकालने को नहीं है, then you could only find out the percentage. Right. Percentage. है ना? Percentage is the first statistics. Right. फ्रीक्वेंसी तो उसी डेटा में ही है कि ये इतने बार है, ये इतने बार है, इतने मेल है, इतने फीमेल है. That is inside the data, है ना? वो तो हम भाई इतने हैं, वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया, that is the frequency. But the first statistics is percentage. Right. और परसेंटेज के भी पहले जो स्टैटिस्टिक्स का जो कोर है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज द प्रोपोर्शन. Okay. प्रोपोर्शन मींस द फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम. दैट इज द प्रोबेबिलिटी आल्सो वी से, है ना? प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी वही प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो ये परसेंटेज में आ गया. Right. ओके, सो बेसिक चीज क्या है कि फर्स्ट जो चीज है दैट इज द प्रोपोर्शन. अपन देखें तो स्टैटिस्टिक्स कहां से स्टार्ट हो रही है? प्रोपोर्शन से स्टार्ट हो रही है. Yes. व्हाट इट? Right. फ्रीक्वेंसी तो उसके इंटरनल चीज है, उससे फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, आप टेबल बनाएंगे, टेली मार्किंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फर्स्ट थिंग इज द प्रोपोर्शन. व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शन वी गेट द परसेंटेज. हाँ जी. क्योंकि प्रोपोर्शन हर कोई के लिए अंडरस्टेबल नहीं होता है, परसेंटेज हर कोई समझ सकता है. हाँ जी. Mr. Parmar, sorry to disturb you. Mr. Parmar, just give me a moment. Deepa, are you able to getting point because you raised a query? So are you getting it? Hello? Hello? Yes? Deepa, are you getting, because you raised a certain query that has sorted out? What query I've asked? I think you asked about what is it is all about. I think you asked about why we are doing the statistics. I mean, I think you did ask a couple of minutes back. No, I was just explaining what you'll do with the statistics. Okay. I'm sorry. Yeah. So I'm sorry to disturbing this batch. I'll not do it this time. No, because I'm muting because my daughter is speaking in between. That's why I'm keeping in Okay. this because I don't want to disturb.
No problem. I'm sorry to disturb the session. So please continue, Yeah. Suparma. I'm sorry. Yeah, it's okay. सो द फर्स्ट थिंग इज द प्रोपोर्शन, है ना. स्टैटिस्टिक्स वहीं से चालू होता है और वहीं पे एंड होता है, समझा. Right. पहली चीज भी प्रोबेबिलिटी है और एंड भी प्रोबेबिलिटी है. देखिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है ना. डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है, ये एक बहुत बेसिक चीज है कि लोग सोचते हैं अरे साहब ये डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स क्यों है, क्या जरूरत है, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, हम तो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले नहीं लगा रहा है, ये नहीं कर रहा है. पर स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज हो रहा है, इसमें कहाँ यूज हो रहा है ना. वो तो एल्गोरिथम रहता है, वो एल्गोरिथम में सिंटैक्स लिखते हैं, आउटपुट मिलता है उनको, और उसमें ऑप्टिमाइजेशन पे जब बहुत डेप्थ में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट रही है. जैसे आपने गूगल लेंस देखा होगा. गूगल लेंस, हैव यू यूज्ड द गूगल लेंस? Google गूगल लेंस, lens. हाँ, Photograph. लेंस. No, The Google Lens, it is in our mobile app. Yeah, yeah. If you इसमें pick of something है तो it will give the, हाँ ये क्या है, उसका description पूरा बताया था और भी लाके है. Okay, that is the image classification model. Yeah, है ना? you can identify some images. हाँ, and you some can put in objects and Google. these all You will things, get yeah. the information about that हाँ, object. yeah. Hmm. So that is the image classification model. Okay, तो image classification model में हम लोग जो images डालते हैं हर ऑब्जेक्ट की 1000 images मिनिमम हम लोग को डालना रहती है. ओके, जब जितना ज्यादा क्लास होता है उतनी ज्यादा इमेज की जरूरत पड़ती है. क्लास का मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट कितने ज्यादा ले रहा हूँ, है ना. जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट लूंगा उतनी ज्यादा क्लासेस हो गई, और क्लासेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी मुझे ज्यादा इमेजेस चाहिए हर ऑब्जेक्ट की, नहीं तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? सो जब इमेज क्लासिफिकेशन में कोई चीज को वो करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालता है कि इसकी इस चीज के होने की ये प्रोबेबिलिटी है, इसका बॉटल होने की ये प्रोबेबिलिटी है, इसका माइक होने की ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि माइक भी एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, बॉटल भी एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट. ऐसे जितने भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट होंगे उस साइज के, उसके वो प्रोबेबिलिटी देखेगा किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. यदि आपने वो इमेज डाली उसमें मॉडल बनने के बाद, फिर वो बताएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उस क्लास को फाइनल कर देगा कि ये चीज है. गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हाँ सर. कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उस क्लास को शो कर देगा कि ये फलाना है, ये बॉटल है या ये माइक है ना. इट विल गिव इन दिस वे. तो वहां भी प्रोबेबिलिटी आए ना अपने पास. ओके, बिना प्रोबेबिलिटी की वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. ओके, ऐसे ही आपने चैटबॉट देखा होगा. चैटबॉट आजकल यूज होते हैं चैट बॉक्स की जगह. आप कोई भी मोबाइल ऐप, बैंक वगैरह का देखेंगे, देयर इज चैटबॉट इनसाइड, कि आप उधर कुछ भी लिखेंगे वो आपको आगे का इंस्ट्रक्शंस दे देता है अपने आप की. हाँ भाई ये 24/7 यूज होते हैं, है ना. तो दैट इज अ चैटबॉट. तो चैटबॉट इज अ टेक्स्ट मॉडल है हमारा, और यदि इसको हम वॉइस इंटीग्रेटेड कर दें तो ये वॉइस इंटीग्रेटेड जैसे एलेक्सा और सिरी है उस तरीके से काम करने लगता है ना. So this is also artificial intelligence. तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी चीज आप पूछ रहे हैं, अपन चैटबॉट पे बात करते हैं, वॉइस इंटीग्रेशन पे नहीं कर रहे अभी. चैटबॉट में आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज को पूछोगे टेक्स्ट करके. भाई वंशिका का लिखने का तरीका कुछ और होगा, आपका दीपा का कुछ और होगा, है ना, और आंचल का कोई डिफरेंट तरीका, मेरा कुछ और तरीका होगा वही चीज पूछने का, है ना. अब इतनी सब चीजें तो हमने पहले से डाल नहीं रखी है उसमें चैटबॉट में. तो वो खाली इंटेंशन कैच करता है उसका, आपका इंटेंशन क्या है पूछने का, इंटेंट क्या है, जिसको हम इंटेंट बोलते हैं. तो देयर आर सो मेनी इंटेंट वी हैव फिट देयर, ये इंटेंट है ना. तो अब जिस इंटेंट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है उसको वो फाइनल करता है कि ये इंटेंट है. वो इंटेंट को वो डायलॉग मैनेजमेंट मॉडल को भेज देता है कि जो उसका रिस्पॉन्स करेगा. उस इंटेंट के अकॉर्डिंग डायलॉग मैनेजमेंट मॉडल आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करता है. यहाँ भी प्रोबेबिलिटी यूज हुई इंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए. जिस इंटेंट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमने उसी को सॉर्ट आउट किया ना. सो यही चीज मैंने बताई. मैं ये बताना चाह रहा था इसमें
कि प्रोबेबिलिटी ही इसका शुरुआत है और प्रोबेबिलिटी ही इसका एंड है। Okay. और क्योंकि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में भी यहाँ इंदौर में एज ए कंसल्टेंट डेटा एनालिस्ट में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट था काफी समय, तो वहाँ मेरी कुछ न्यूरो सर्जन से बात हुई थी। तो मैंने कहा कि सर अपना डिसीजन मेकिंग दिमाग में कैसे होता है, मैंने कहा वो उनसे मेरा डिस्कस हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका, तो वो कह ले, मैंने कहा कि सर हम लोग तो ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे, तो कह लगे दिमाग में भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे ही डिसाइड करते हैं, प्रेडिक्शन जो भी है, दिमाग भी न्यूरॉन्स जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है पूरे। Okay. तो वो मनुष्य भी उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकालता है, हाँ इस चीज की ज्यादा संभावना है, इस चीज की कम संभावना है, और उस हिसाब से जैसे अपन किसी का फेस तो पहचान लेते, सामने से कोई मिला हमें पर उसका नाम याद नहीं आ रहा होता है हमें, Yes, yes. है ना, तो फिर एक प्रोबेबिलिटी चलती है उसकी, क्या ये महेश हो सकता है या रमेश हो सकता है ना, पर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है हम वो नाम बोल देते हैं उसको, हाँ यार ये है, समटाइम्स इट हैपेंस ना। तो ये चीजें हैं कि एवरीथिंग, अब हमारा जो न्यूरॉन्स है, हमारा जो माइंड है, वो भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ आई एक्सप्लेन यू द टाइप ऑफ एनालिसिस, ओके। Now we see how many types of analysis are there. Descriptive analysis. Second one is inferential analysis. Third one is predictive analysis. Fourth one is perspective analysis. Is it perspective or prescriptive analysis? Prescriptive is a different thing. Prescriptive we include the predictive. अच्छा. Perspective. हाँ, perspective. क्या है कि दो तीन तरीके से लोग उसको वो करते हैं। जब प्रेडिक्टिव को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्टिव कर देते हैं वो लोग, है ना। पर्सपेक्टिव जब हम प्रेडिक्टिव को अलग रख रहे हैं, है ना। Okay. सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव इज व्हाट इज, इसका जो हम देखें यदि इसको व्हाट इज, हमारे पास जो भी है वो सब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। जैसे कि हमारे पास कोई डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम है जेंडर, अब जेंडर में मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, या हम उसको फ्रीक्वेंसी से ले लें या परसेंटेज में बता दें, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मान लीजिए हमारे पास 3 सेक्शन है एबीसी 10th क्लास के, और उनके मैथ्स के एवरेज मार्क्स ए सेक्शन के इतने हैं, बी सेक्शन के इतने हैं, सी सेक्शन को अपन ने यहाँ क्या किया, मीन निकाले तीनों सेक्शन के, ए बी सी के। ओके गीता, दीपा, आर यू गेटिंग इट? आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश? No problem. ओके, तो हम लोग ने मीन निकाला तीनों सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स का, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स मीन यानी एक स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया हमने, है ना। तो उससे भी हम लोग देख रहे हैं कि भैया इतने हमारा ए सेक्शन का एवरेज मार्क्स इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्या है हमारे पास, यही बात हो रही है ना, क्या है, हम उसमें आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भाई ये है। ओके, अब इन्फेरेंशियल एनालिसिस यदि देखें तो वो होगा व्हाई इट इज। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने मैथ्स के मार्क्स देखे एबीसी 3 सेक्शन के, और हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या ए और बी सेक्शन में बच्चों के मैथ्स के मार्क्स में। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the marks of average marks of mathematics in section A and B. We have to find out. Okay. If there is significant difference, then we have to find out the cause, why it is. Okay. Is it clear? Right.
सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में बताएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, एंड इन्फरेंशियल इन्फेरेंशियल में बताएं, इन्फेरेंशियल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। डिस्क्रिप्टिव तो खाली हमने मीन निकाले, डिस्क्रिप्टिव में वी हैव गॉट ओनली द स्टैटिस्टिक्स। ओके, लाइक इतने रोज है, इतने कॉलम्स हमारे पास, दैट्स हाँ, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर ए सेक्शन के बच्चों का मीन क्या है, बी के बच्चों का मीन क्या है, मैथ्स का सी के बच्चों का मीन क्या है, ये हमने सब डिस्क्रिप्टिव में निकाला है। पर उसका हमने ऐसा क्यों है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्फेरेंशियल एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे होता है क्या? है कि लाइक जैसे कि खाली ए सेक्शन का इतना मीन है, बी सेक्शन का इतना मीन है, सी हाँ, का इतना, ये हमने निकाले हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके। हाँ, अब हम उसके अंदर कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ए सेक्शन के एवरेज मार्क्स ज्यादा क्यों है बी सेक्शन के बच्चों से, हाँ, तो दैट इज इन्फ्रेंशियल। इन्फेरेंशियल एनालिसिस। और यदि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसमें, इफ देयर इज सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एक जरूरत से ज्यादा अंतर तो होगा, है ना, तो पर यदि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कुछ ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा डिफरेंस है, तो तब हम उसका कॉज फाइंड आउट करेंगे कि उसका कारण क्या है। सो ये जो इन्फेरेंशियल एनालिसिस होता है दैट इज फॉर कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट इट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? राइट। तो यदि हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है दोनों सेक्शन के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स में, फिर हम उसका कारण ढूंढेंगे कि कारण क्या है, क्या टीचर के कारण है ऐसा, अच्छा नहीं है ना। यदि सेम टीचर पढ़ा रहा होगा तो टीचर के कारण नहीं माना जाएगा वो, ओके। यदि सेम टीचर नहीं होगा, डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो हम बोल एक बार हमारा संदेह जा सकता है क्या यह टीचर के कारण हो सकता है, अंतर हो, ओके। दूसरा डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बच्चों में भी हो सकता है। अब वो हम कैसे पता करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट में बच्चा कैसा कर रहा है, अदर सब्जेक्ट्स में। यदि वो इंग्लिश में अच्छा कर रहा है, साइंस में अच्छा कर रहा है, वो खाली मैथ्स में ही गड़बड़ कर रहा है और टीचर डिफरेंट है, तो हमारा सीधा सीधा डिसीजन हो गया कि टीचर में गड़बड़ है। अब क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो अच्छा कर रहे हैं ना बच्चे, अब टीचर भी सेम है, फिर भी मैथ्स में गड़बड़ आ रही है, खाली मैथ्स में ही गड़बड़ आ रही है, टीचर सेम पढ़ा रहा है, देन अब यहाँ हिडन चीज है, मैं जो बोल रहा था आपको, सम हिडन थिंग इज हियर। क्या हो सकता है? because the student is not good in maths. नहीं, अदर सब्जेक्ट्स में दे आर डूइंग वेल, साइंस में भी अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि टीचर एक सेक्शन में पार्शियलिटी से अच्छा पढ़ा रही है, दूसरे में नहीं पढ़ा रही है। और काफी करीब पहुंच रहे हैं आप लोग। तो हो सकता है कुछ मतलब टाइमिंग्स का कुछ हो, जैसे हाँ, करेक्ट, अब आप पहुंचे हैं सही। देखिए, बी सेक्शन में मैथ्स का पीरियड लंच के बाद आ रहा है, ओके। और लंच के बाद बच्चे डल हो जाते हैं, राइट। बच्चे के टीचर भी डल हो जाते हैं। लंच के बाद का जो पीरियड होता है वो थोड़ा डल पीरियड होता है ना। तो ये मेरे साथ एक रियल एक्सपीरियंस रहा था। यहाँ एक वेदांत स्कूल है इंटरनेशनल, उन्होंने मुझे बुलाया था आज से 3 साल पहले, जब ये 10th जो है ना वापस कंपल्सन किया था ना, जिस साल इन्होंने, क्या बोर्ड ही देना पड़ेगा, पहले बीच में ऑप्शनल हो गया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनके यहाँ 2 सेक्शन में यही दिक्कत आ रहा था, तो बाकी सब्जेक्ट में बच्चे सब अच्छे और मैथ्स में क्यों दिक्कत हो रहा है। तो मैं गया वहाँ, मैं देखा उनका पुराना रिजल्ट देखा, बच्चों का 9th का भी देखा, 8th का भी देखा, परफॉर्मेंस 10th का भी देखा, और ग्रेजुअली इट वाज डिक्रीजिंग। एग्जाम के 2.5 month बिफोर दे कॉल्ड मी। तो मैं सब एनालिसिस किया, हर तरह का टेस्ट लगा लिया, एनोवा वगैरह सब लगा लिया। मैंने कहा यार ये सब कुछ तो सही है, और टीचर सेम पढ़ा रहा था, बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया रात को सोते सोते, मैं वही हिडन चीज थी, एकदम से तो दिमाग पे क्लिक करेगी नहीं ना। तो मैंने ये टाइम टेबल नहीं देखा, मैं दूसरे दिन गया, मैंने कोऑर्डिनेटर से टाइम टेबल डिमांड किया, उसने मुझे टाइम टेबल दिया, और मैंने जैसे ही टाइम टेबल हाथ में लिया, बस वो मैथ्स के जस्ट मतलब लंच के जस्ट बाद मैथ्स का पीरियड था उधर,
मैं फिर गया अपने रूम में जहाँ मेरे को जगह दी थी टेबल, वहाँ बैठ के पूरी रिपोर्ट बनाई और डायरेक्टर को सबमिट करी, सब ये रीजन है। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अपन खोज कुछ और करते रहते हैं, वो हिडन चीज होती है, वो बाद में पता चलती है, वो उसके लिए कोई मुझे एनालिसिस की भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो समटाइम्स इट हैपेंस, सो दैट इज द इन्फेरेंशियल एनालिसिस व्हाई इट इज। समझ में आ गया आपको व्हाई इट इज का, कि हम सिग्निफिकेंट जो भी हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे वेरिएंस हो, चाहे एसडी हो, उनमें यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो पता करने के लिए इन्फेरेंशियल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स का भी वो होता है क्या, जैसे कि कुछ नंबर से रिलेटेड या क्वालिटेटिव मेजर्स हैं? क्वालिटेटिव मेजर का भी करते हैं ना, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव के लिए उपयोग होता है। हाँ, जो बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हाँ, बिहेवियर पे। हाँ, तो वी विल स्टडी दिस ऑल टेस्ट इन दिस वर्कशॉप। अपने जो भी पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, इन्फेरेंशियल और प्रेडिक्टिव में खाली लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बाकी का तो फिर लंबे वर्कशॉप में जाएगा, व्हेनेवर वी स्टार्ट द अदर सेशन, जो आपकी कुणाल जी से बात हुई होगी उसमें फिर अपन आगे की चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। इन्फेरेंशियल, नाउ यू गॉट व्हाट इज इन्फेरेंशियल एनालिसिस बेसिकली। Whatever statistics we find out from descriptive analysis, उसको हम इन्फेरेंशियल के थ्रू हम उसका कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। इफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, और क्रॉप प्रोडक्शन को कई चीजें इफेक्ट करती हैं। एक तो रेन तो करती है, रेन तो अपनी जगह है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सॉइल क्वालिटी है, सीड क्वालिटी है, सीड क्वालिटी के बाद आपका इरिगेशन है, पानी आप कैसे दे रहे हो, किस किस टाइम पे दे रहे हो, है ना, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें। अब किसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, भाई किसी का कम पड़ रहा होगा, किसी का ज्यादा पड़ रहा होगा ना। हर चीज का प्रभाव एक समान थोड़ी पड़ रहा होगा क्रॉप प्रोडक्शन पे। तो वो जो चीजें निकलती हैं वहां हम उनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, है ना। जब भी हम करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा होता है, इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा था, उनको, उन वेरिएबल को हम इंक्लूड करते हैं, बाकी वेरिएबल को हटा देते हैं। जो कम इम्पैक्ट डाल रहा है उन वेरिएबल को, नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल होते हैं हमारे लिए, वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम उनको रिमूव कर देते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो कॉज फाइंड आउट करना है, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कि नहीं है, या इफेक्ट है कि नहीं एक का दूसरे पे, है ना, वो भी फाइंड आउट करते हैं इन्फेरेंशियल में। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस में। प्रेडिक्टिव में जो चीज आती है, व्हाट विल बी, ओके, क्या होगा। यहां मैं यही बता रहा हूं आपको, रेन वाली और क्रॉप प्रोडक्शन के एग्जांपल दे रहे हैं कि इतना मिलीमीटर रेन हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा। यदि अपन एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया अपना, क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन रेन, रेन इज इंडिपेंडेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट, ओके। तो यदि हमारे इतना मिलीमीटर बारिश हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, वी कुड इजीली फाइंड आउट थ्रू दिस, व्हाट विल बी, क्या होगा। इसी प्रकार यदि हम और वेरिएबल ले लें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली यूनिक, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होंगे, एक तो रेन हो गया, सॉइल क्वालिटी हो गया, सीड क्वालिटी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, सनलाइट हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ये सब वेरिएबल हो गए इंडिपेंडेंट, कि जो इसको इफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर व्हाट विल बी, यदि हम सीड क्वालिटी ये वाली लें तो कैटेगरिकल हो गए ना सीड क्वालिटी, आप जो बात कर रहे थे कैटेगरिकल वेरिएबल, है ना, कैरेक्टर फॉर्म में। तो कैटेगरी के सीड क्वालिटी फलाना लेंगे, फिर हमने इरिगेशन हम इतने टाइम दे रहे हैं, चलो वो न्यूमरिक हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स अपना जो था एक डिस्क्रीट। फिर आपका पेस्टिसाइड्स कितना डाल रहे हैं, कौन सा डाल रहे हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स कौन सा डाल रहे हैं, तो ये सब चीजें कैटेगरिकल भी हो रहा है, क्वांटिटी भी, क्वांटिटेटिव भी हो रहा है ना। ये, हाँ, तो ये सब चीजों के द्वारा हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई कितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ओके। सो वी कुड इजीली फाइंड आउट द क्रॉप प्रोडक्शन if we have involved all the significant independent variables,
है ना, यदि हमने इन्वॉल्व किए तो वी कुड इजीली फाइंड आउट द क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपरली। अभी आप देखेंगे कि मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले वेदर फोरकास्ट होता था, पहले भी और आज भी, क्योंकि आपने देखो आज से 5 साल पहले जो वेदर फोरकास्टिंग होती थी उसमें वो बोलते थे कल बारिश होएगी तो उस दिन सूरज उग जाता था, होता था ऐसा, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। और वो बोलते थे कि कल साहब धूप रहेगी तो उस दिन देखा बर्फ गिर गई या ओले गिर गए या बारिश हो गई, है ना, या आंधी चल गई। तो पहले फोरकास्टिंग होती थी। दो चीजें हैं, एक फोरकास्टिंग एक प्रिडिक्शन है ना, दोनों में डिफरेंस है। अब होता है प्रिडिक्शन, अब वेदर प्रिडिक्शन होता है, अब वेदर फोरकास्टिंग नहीं होती। फोरकास्टिंग क्या होती थी, पिछले डेटा से उन्होंने अनुमान लगा लेते थे कि यार ऐसा होगा कल, आज तक के डेटा से कि भैया यार ये ऐसा है, आज ऐसा मौसम दिख रहा है तो कल ऐसा होगा। करंट इनपुट नहीं डालते थे वो। आज क्या है, करंट इनपुट है कि आज विंड का स्पीड इतना है, हवा का रफ्तार इतना है, मॉइस्चर इतना है ना, एवरीथिंग दे नो, दे हैव द डेटा ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। पर सेकंड उनके पास मिली सेकंड में डेटा आ रहा है ना, वेदर का हर तरफ से। तो वो डेटा, वो करंट डेटा फिट करते हैं, मॉडल बना हुआ है उनका, वो मॉडल प्रेडिक्ट कर देता है कि ये मौसम रहेगा, कल इतने बजे बारिश होगी। वो लोग इवन आजकल तो टाइम भी फिक्स बता देते हैं कि साहब शाम के टाइम बारिश होगी, और होती है ना। कितना करेक्ट प्रेडिक्शन। तो दिस इज द प्रेडिक्शन, दिस नॉट द फोरकास्टिंग। तो प्रेडिक्शन में हमें करंट इनपुट चाहिए पड़ते हैं, फोरकास्टिंग में करंट इनपुट नहीं चाहिए। जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस में एक ही वेरिएबल है खाली। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में खाली सेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास, शेयर प्राइस के अलावा, सॉरी, कुछ भी नहीं है, टाइम है बस। तो हम उसमें फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हमें करंट तो इनपुट कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, दैट इज द फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग में फ्लक्चुएशन बहुत हो सकता है ना, मतलब हेड टेल बहुत हो सकते हैं। वी कुड नॉट से एनीथिंग फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग 100% उल्टा भी हो सकता है कभी, है ना, दैट इज द फोरकास्टिंग। प्रेडिक्शन में नहीं, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के बहुत करीब होता है ना, रियलिटी के बहुत करीब होता है, काफी एक्यूरेट होते हैं। तो समझ में आ गया आपको प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे प्रेडिक्टिव मॉडल की। प्रेडिक्टिव मॉडल में टाइम सीरीज आएगा, फोरकास्टिंग भी हम लोग देखेंगे उसमें थोड़ा सा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। अब यहीं से हमारी मशीन लर्निंग चालू हो जाती है। एक सेकेंड, ये मशीन लर्निंग चालू हो जाती है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जिसको एमएल बोलते हैं, है ना। अब पर्सपेक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। अब यहां मैं एक चीज बताता हूं आपको। अपन ने देखा इसके पहले व्हाट विल बी, कि हमने ये पेस्टिसाइड डाला, ये सीड क्वालिटी ली, फलाना लिया, क्रॉप प्रोडक्शन इतना होगा, हमें एक फिगर मिल गया। और हमारा जो गवर्नमेंट बोलती कि नहीं यार हमें इतना नहीं, इतना चाहिए, और देयर इज ए गैप बिटवीन आपका क्रॉप प्रोडक्शन और डिमांड जो है, उसमें गैप है बहुत बड़ा। वो बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी, इतना होना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि इतना हमारे देश में कंज्यूम होगा, इतना हमें एक्सपोर्ट करना है, तब तो रेवेन्यू मिलेगा, हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने एक टारगेट रखा कि इतना क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, और हमारा मॉडल बोल रहा है कि इतना ही होगा, देयर इज अ गैप, है ना। अब उस गैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड है उतना हमें मिल पाए। मॉडल तो ये बता रहे कि इतना होगा, मॉडल का काम खत्म हो गया है, मशीन लर्निंग का काम खत्म। यहां फिर चीज आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Got it? This is artificial intelligence. ये क्या करता है कि ये जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जितने भी सीड क्वालिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उनकी क्वांटिटी ये डिसाइड करता है मॉडल कि ये वाले क्वालिटी का सीड लेना है आपको, ये पेस्टिसाइड इतनी क्वांटिटी में डालना है, ये इतना करना है, ऐसा इरिगेशन, इतनी सनलाइट चाहिए, इतना आप कर देंगे। कुछ चीजें तो अपने हाथ में नहीं है, जैसे सनलाइट और रेन, तो
तो उसको छोड़ के बाकी जो भी हमारे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो चीजों के बारे में आउटपुट बताएगा ये। यदि हमने उस तरह से कर दिया तो जो पर्सपेक्टिव जो हमें व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसमें आपको। मशीन लर्निंग इज एन इन्फेंट, एक बच्चा है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एडल्ट, है ना। जब अपना बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो भी चीजें हम लोग खरीदते हैं उसके लिए तो हमारे डिसीजन होते हैं अप टू 9-10th स्टैंडर्ड तक हमारी होता है ना, कपड़े वपड़े हर चीज में, मोबाइल वगैरह। जब वो 11th-12th में आ जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर वो हमें सजेस्ट करता है कि पापा ये नहीं ये वाला मोबाइल लो, ये ज्यादा अच्छा है, कहता है। मतलब वो एडल्ट या इंटेलेक्चुअल हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं अपन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, वहां अपन उसको इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। तो एआई इज एन एडल्ट और एमएल इज अ इन्फेंट। अब एमएल एआई कैसे कन्वर्ट होता है? चलो, यहाँ तो इंसान 3 तरीके से सीखता है, 3 तरह से हम लोग लर्न करते हैं किसी भी चीज को। मैं आपको बताता हूं। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि माँ या पिताजी जो अपने बेटे को बताते हैं कि छोटा जब बच्चा रहता है कि बेटा ये सेब है, ये चाचा है, ये मामा है, ये गाड़ी है, ये टीवी है, बताते हैं अपन लोग, सुपरवाइज कर रहे हैं उसको, बता रहे हैं कि ये चीज है, वो सीखता है ना। अनसुपरवाइज लर्निंग में मान लीजिए कोई माँ है, वो बैठी हुई अपने करेले छिल रही है, काट रही है, वो बच्चा आया पाँव पाँव चल के और उसने करेले का टुकड़ा लिया, अपने मुंह में डाल लिया। अगली बार करेला मुंह में डालेगा कि हाथ लगाएगा करेले को? है नहीं लगाएगा। दैट इज द अनसुपरवाइज लर्निंग। किसी ने नहीं सिखाया, उसने मुंह में डाला, कड़वा लगा, अगली बार वो करेले तो छोड़ो, गिलकी को भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर की होती है, वैसी दिखती है क्या। तो दैट इज द अनसुपरवाइज लर्निंग, कि वो खुद से सीख रहा है। इज इट क्लियर? तीसरा होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, कि बच्चे को अपन ने पेन दिया, उसके हाथ में कोई भी चीज आई, उसने पिताजी की जेब से पेन निकाला और मुंह में डाला, तो हम उसको डांटते हैं या समझाते हैं प्यार से, बेटा इसको मुंह में नहीं लेते, है ना। दैट इज द रेनफोर्समेंट। वो कुछ एक्शन कर रहा है, हम उस एक्शन के अगेंस्ट उसको समझा रहे हैं, या तो प्यार से समझा रहे हैं, या डांट के समझा रहे हैं, या मार के समझा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर मशीन को भी हम लोग इसी प्रकार से सिखाते हैं। सुपरवाइज मॉडल भी होते हैं कुछ हमारे अनसुपरवाइज मॉडल होते हैं, कुछ हमारे रेनफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। मॉडलिंग, इनमें से अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मॉडल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है सिखाने का। जब ये सब चीजें, इन सब का मिक्सचर जो होता है, दैट इज द एआई। इज इट क्लियर? मशीन लर्निंग में तो एक एक सेपरेट मॉडल है आपका, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, रेनफोर्समेंट है, देयर इज अ सेपरेट मॉडल। इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया वो। दैट इज द थिंग, कि वो एडल्ट हो जाता है, बहुत सी चीजों से, बहुत से सोर्सेस से वो सीखता है, और इसकी जो खुराक होती है किसी भी मॉडल की, दैट इज द डेटा। मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल में जितना बड़ा डेटा होगा, उतने अच्छे प्रेडिक्शंस आपके उतने अच्छे होंगे, क्योंकि उतने पैटर्न उसको देखने को मिलेंगे, है ना। जितना ज्यादा डेटा को उतने ज्यादा पैटर्न्स मिलेंगे डेटा में, उस पैटर्न्स को उतने अच्छे से समझेगा, उतना अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया? अब अपन जो शुरुआत करेंगे, दैट इज द आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ओके, तो मैं 5 या 10 मिनट का अपन लोग ब्रेक ले लेते हैं। आर यू एग्री? ओके, है ना, 10 मिनट ब्रेक एंड देन वी स्टार्ट। इट इज द 4 PM नाउ, आई थिंक।
सो तो अपन 4:10 पे वी स्टार्ट दिस क्लास अगेन, है ना? आप कोई भी लॉग आउट नहीं होगा, आप इस ऐसी सिस्टम छोड़ दीजिए, है ना? और देन वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर।